Hi guys, good morning. Good morning, sir. Okay, so let's start. So first thing is that we whatever thing we cover in the last session. Okay, so in the last session we started with your DDL commands. Which command are included in DDL? Which command are included in DDL? Create, alter, Hmm? drop, Hmm? truncate, and rename. Okay, suppose I want to create the one table with the 10 column. Then 10 what should column. be a syntax? Create table, Hmm. demo 10 Hmm. and नंतर सर सर्व त्याचे सिरियल नंबर और नेम लास्ट नेम आयडी Means वगैरे mean जे whatever टाकायचे. 10 column we required, we pass the 10 column name along with the data type and that's it. हां. Okay. Suppose I want to remove the one column from that table. Yes. Consider like that. So I have this table. Okay. 1 minute, Yes, I'm sir. sharing my screen. It's visible for all. Yes, sir. Okay. So I want to remove this job column. Then what should be a solution? Alter the table demo 10 Hmm. column क्या सर column job and then drop. No, Truncate. no. Truncate, sorry, truncate, sir. The query should be a correct. Huh? Without, if we write a wrong query, then there is no output. Always error is there. Okay, so the query should be like as alter table or table name, correct? Then Yes, sir. what action you need to perform? Suppose we want to remove the column, if you want to add the column, if you want to make the changes over the that particular column, like as if you want to change the data type, size or constraint, then we are using the modify. Okay, Huh. now alter table name. So I need to drop the this, I want to remove the this column, correct? So Huh. alter table name. So we need to perform a drop operation. Drop, what thing we need to drop? We need to drop the column, and then Job. each column, it's a job column. So there is we need to pass the column name, correct? Suppose the job column having the data type is a char. Okay, so I want to convert it to the char2. So what should be approach? Alter table name. Hmm? Then Modify. modify. Alter table name. Modified. Modify. So Uh, on which column we need to modify? Suppose here we pass the column name, correct? So whatever new thing we need to apply, means here we have the data type is a char, so we need to convert this to varchar2. So column name and simply put the varchar2, and whatever size you require, put that size as well. Clear? Yes, sir. Okay, this thing is clear for alter. Suppose if you want to add some column, new column, if you want to drop the some existing column, suppose if you want to make the changes over the existing column, then we are using the modify. Clear? Create and alter, Yes. these two thing is clear. Yes, sir. Okay, so now today we want to learn about this truncate command. देखो ये जो truncate command है ये बहुत easy है. ओके, अभी यहाँ पे ड्रॉप में क्या होता है? वंस यू ड्रॉप द टेबल, योर स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा बोथ गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. यस और नो? अगर आपने इस तरीके से कमांड चलाया, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, इससे क्या होता है? ये कमांड चलाने के बाद योर टेबल गेट रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम,
यहाँ पे भले ही आपके पास 10G के ऑनवर्ड एक फंक्शनलिटी है कि अगर गलती से कोई टेबल ड्रॉप हो जाता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ flashback. फ्लैशबैक। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपने कोई टेबल ड्रॉप किया तो उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा चला जाएगा। Yes, sir. बट जब आप ट्रंकेट करते हो, अगर आप किसी टेबल को ट्रंकेट करते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, स्ट्रक्चर रिमेन। उसके अंदर का जो डेटा है, मतलब डेटा मीन्स ये वाला चीज, देखो स्ट्रक्चर मीन्स क्या, अगर ये चीज को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कॉलम नेम, टेबल का जो स्ट्रक्चर रहेगा, इट्स योर स्ट्रक्चर। ओके, ये उसका क्या है, डेटा है। हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल को नाम दिया, क्या क्या कॉलम हो गए, उसके अंदर डेटा डाल दिया। म्यूट योरसेल्फ, डिस्टरबेंस हो रहा है बैक साइड पे। देखो स्ट्रक्चर मीन्स क्या, कि आपका टेबल का नाम और आपने वो टेबल में क्या क्या कॉलम डिफाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट कमांड। करेक्ट, ये बनाया आप लोगों ने स्ट्रक्चर। जैसे ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कोई डेटा होता है, ये उसका डेटा है कि सीरियल नंबर इस तरीके से होगा, नाम इस तरीके से होगा, डेटा डेट ऑफ बर्थ होगा, एड्रेस होगा, जॉब होगा, ये क्या है, ये आपका डेटा है। बट जब आप ड्रॉप चलाते हो किसी भी टेबल के ऊपर, अगर आप ड्रॉप कमांड चलाते हो तब क्या होता है, स्ट्रक्चर एज वेल एज आपका डेटा परमानेंटली जाता है। ओके, बट सेम अगर आपने किसी टेबल के ऊपर ट्रंकेट चलाया तो उसका स्ट्रक्चर बचता है लेकिन डेटा परमानेंटली जाता है। देखो ट्रंकेट में क्या होता है, डेटा परमानेंटली, बट स्ट्रक्चर रिमेन। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं। सो वी गो एंड क्रिएट द वन टेबल। देखो अगर आपको क्लियर स्क्रीन करवाना है, क्लियर इस तरीके से आप डाल सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा एडिटर, बहुत लंबा स्क्रिप्ट हो गया और आपको अप डाउन करना पड़ रहा है स्क्रिप्ट को, तो आप उसको क्लियर स्क्रीन करके पूरा स्क्रीन को क्लीन कर सकते हो। ये नोट डाउन करो, ये लगता है जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिसेस एंड देयर इज द वी आर गेटिंग इनिशियली वी आर गेटिंग द एरर्स। यस और नो, आप लोगों को एरर आ रही है टेबल क्रिएशन में, टेबल अल्टर करने में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. तो मल्टीपल वो पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, क्लियर SCR करके उसको क्लियर कर लो स्क्रीन को, तो आपको एक क्लीन एडिटर मिल जाएगा। ओके, नाउ हम लोग एक पूरा सिनेरियो देखेंगे कि ट्रंकेट ड्रॉप का कैसे कंपैरिजन होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग क्या करते हैं, टेबल को बनाते हैं। क्रिएट टेबल डेमो 14 बनाता हूं, मैंने लास्ट टाइम उसको ड्रॉप कर दिया था। ओके, क्रिएट टेबल डेमो 14। यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि कॉलम क्या क्या ले, एक 4-5 सा कॉलम ले लेंगे हम लोग, बोलो बोलो। नेम, सीरियल नंबर। ओके, Serial ये नंबर number. लिया, इसका डेटा टाइप आपका नंबर है, साइज सपोज हम लोगों ने 10 डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ नेम ले लिया। ओके, इसका डेटा टाइप हम लोगों ने varchar 2 कर दिया और साइज इसका मैंने 20 करवाया। ओके, एल नेम ले लिया। ओके, इसका भी डेटा टाइप मैंने varchar 2 किया और साइज मैंने इसका भी 20 करवाया। सपोज मैंने DOB वाला कॉलम ले लिया, इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या करवाया, और क्या कॉलम लेंगे, कॉन्टैक्ट करवाया। ओके, इसका डेटा टाइप देखो, कॉन्टैक्ट का डेटा टाइप क्या होगा, कौन बताएगा कॉन्टैक्ट का डेटा टाइप क्या हो सकता है? न्यूमेरिक। बट किसी बंदे ने उसको +91 हाइपन देन पुट द नंबर कर दिया तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ना, सपोज वी हैव द कॉन्टैक्ट कॉलम। ओके, एक कॉन्टैक्ट कॉलम है हम लोगों के पास,
तो मुझे एक चीज बताओ, इसका डेटा टाइप अगर आपने नंबर लिया और किसी बंदे ने उसका नंबर 91 हाइपन इस तरीके से डाला, तो ये नंबर में जाएगा प्लस एंड हाइपन वाला साइन जाएगा क्या? No, sir. No, तो sir. No, sir. इसके लिए कांटेक्ट का डेटा टाइप आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, varchar 2 लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आ जाइए, इसका साइज कितना होगा सर, मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हैं? देखो एक बेसिक चीज है, आपका 10 डिजिट का नंबर होगा, एक हाइपन वाला साइन 11, 91 के लिए 2 और 11 प्लस 2 इज 13 एंड प्लस साइन इज 14, तो हम लोग ले ले 15, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखेंगे। ओके, तो डेटा टाइप आपका बनेगा varchar 2 साइज इज 15। ये बन गया आपका टेबल। अभी आपको पता है कि हाउ वी चेक द Describe. structure of the table, then we are using the describe command and Demo for train. यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई, सेम हम लोगों को मिला कि इसका नंबर डेटा टाइप, इसका 20 साइज है, इसका डेट है। ओके, यहाँ तक समझ में आया, क्रिएट टेबल एंड हाउ वी डिस्क्राइब। Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो एक चीज समझ में आया, मैं ना कुछ डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवा दूँ, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि ट्रंकेट में क्या होता है और ड्रॉप में क्या होता है। ओके चलो, मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर, ये क्वेरी हम लोग आगे देखेंगे। इंसर्ट इनटू डेमो 14 वैल्यूज। चलो अभी सीरियल नंबर सपोज 1। ओके, अभी आपका एफ नेम जो है ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स मीन इट्स अ स्ट्रिंग। Yes, sir. ओके, दूसरा भी आपका varchar 2 है, इट्स आल्सो अल्फा न्यूमेरिकल, तो इट्स आल्सो स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद आपका डेट, अभी ओरेकल का डेट क्या है, डेट फॉर्मेट Date, month, and year. So, MMDT. इस तरीके से mm dd mon yy। ओके, और कांटेक्ट नंबर भी आपका varchar 2 है, तो इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, इतना ही डालना SPS Spelling error. there must be माइनस है, शायद से हाइपन लगाना पड़ेगा। सर वन को
इनोवेटिव कॉलर में नहीं दे सकते क्या नंबर डाटा जो आपने नंबर को वैल्यू कोट में नहीं लेते। नहीं लेते क्या? कैर और varchar 2 रहा ना, तो उसको हाँ कोट में इट्स डिनोट एज अ स्ट्रिंग ना। ओके 4 डिजिट बोल रहा है क्या? देखिए क्या हो रहा है, हम लोग इट्स कंसिडर एज -99, तो वो एरर दे रहा है कि ईयर मस्ट बी बिटवीन -14 टू द +99। ये कन्वर्जन नहीं दे रहा मुझे, इसलिए एक्चुअली ईयर मस्ट बी बिटवीन ना। एक सेकेंड, मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ, ये एरर बाद में देखना है, फिर से स्किप करता हूँ। इस तरीके से ही जाता हूँ। कहाँ चला गया ये हाइपम क्यों उठा रहा है? ठीक है, ओके। अभी टेबल के अंदर डेटा गया, इसको कमिट कर देता हूँ, रियल कमांड किए, इसको रीलोड किए। अभी आपके पास क्या है, आप लोगों के पास डिस्क्राइब डेमो 14 स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डेटा है कि चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 14, डेटा भी है, स्ट्रक्चर भी है और डेटा भी है। अभी अगर मैं ये टेबल के ऊपर ड्रॉप लगाता हूँ, देखो ड्रॉप टेबल डेमो 14, टेबल ड्रॉप हो गया। तो उसको डिस्क्राइब करके चेक करते हैं। डेमो स्ट्रक्चर मिला आपको, स्ट्रक्चर मिला, नो नो सर। सर। गॉट द स्ट्रक्चर, नो। नो चलो सर। हम लोग डेटा चेक कर लेते हैं। ड्रॉप के बाद क्या हो रहा है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 14 कुछ मिला आपको। There is a no object present in system. Once you apply the drop over the table, structure as well as data both get removed. Got it? But यस सर। अगर हम लोगों से कुछ टेबल ड्रॉप हो जाती है, अगर हम लोगों से कुछ टेबल ड्रॉप हो जाती है, तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं ऑनवर्ड png। कैसे करेंगे उसको? यूज करके फ्लैशबैक, बोलो मेरी बोलो। फ्लैशबैक टेबल और टेबल टेबल को फ्लैशबैक टेबल नेम डेमो 14 बिफोर बिफोर ड्रॉप। ड्रॉप। टू बिफोर ड्रॉप आपका टेबल आ गया, चेक करते हैं, तभी है, स्ट्रक्चर भी है। ओके, देखो जब हम लोगों ने किसी टेबल के ऊपर ड्रॉप लगाया तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने किसी टेबल के ऊपर ड्रॉप लगाया तो क्या हुआ, उसका सर स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा दोनों चीज चला गया। यस सर। ओके, अभी सेम टेबल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने उसको रिकवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द फ्लैशबैक। यस सर। ओके, अभी हम लोग क्या सर करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। ओके, टेबल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। देखो ट्रंकेट अभी परमानेंटली जाएगा, आपका डेटा परमानेंटली जाएगा, बस स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम इज डेमो। टेबल ट्रंक हो गया। अभी चेक करते हैं, सर उसका स्ट्रक्चर मिला आपको, ट्रंकेट करने के बाद स्ट्रक्चर मिला, डेटा चेक करेंगे ना, डेटा नहीं मिलेगा। मिला डेटा? नो
यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन आपको फ्लैश होती है इंटरव्यू के दौरान। एक होता है कि अगर आपने टेबल के ऊपर ड्रॉप चलाया और अगर आपने टेबल के ऊपर ट्रंकेट चलवाया, once you apply the drop over the table, data as well as structure removed from system। अगर आपने उसके ऊपर ट्रंकेट चलाया तो क्या होता है बताओ अभी? डेटा चला जाता है बट स्ट्रक्चर डेटा removed from system permanently। आप इसको रिकवर नहीं कर सकते because the reason is that the truncate is your DDL command and DDL commands are the auto command। Clear? Yes sir. ये चीज समझ में आया सबको? Yes sir. ड्रॉप चलाओगे किसी भी टेबल के ऊपर, अगर आप ड्रॉप चलाते हो क्या होता है? स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। और अगर आपने किसी टेबल के ऊपर ट्रंकेट चलवाया तो वहां पे सिर्फ आपका डेटा परमानेंटली रिमूव हो जाता है बट आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है? इज इट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर ड्रॉप भी तो डीडीएल कमांड है ना, मतलब ऑटो कमिटेड कमिटेड है। आपने ड्रॉप कर दिया वो भी चला जाएगा बट वी हैव द वन फीचर फॉर दैट फ्लैशबैक। गलती से अगर ड्रॉप, देखो अगर आपने क्या किया, एक अच्छा सा टेबल बनाया है उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है और आपसे गलती से ड्रॉप हो गया, गलती से, तो आप क्या करोगे? उसको फ्लैशबैक कर सकते हो। ओके। बट ट्रंकेट में डेटा एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता। और ड्रॉप भी आपका बेसिकली क्या होता है कि वी डायरेक्टली इज नॉट डूइंग द एनी काइंड ऑफ एक्शन ओवर द टेबल लाइक एज अ ड्रॉप। विदाउट अप्रूवल हम लोग क्या करेंगे? उसको कभी टच नहीं करते क्योंकि ड्रॉप करा मतलब वो चला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। बट वी हैव द वन फीचर कि गलती से अगर ड्रॉप होगा तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके ओके यहाँ तक समझ में आया? ट्रंकेट का मीनिंग समझ में आया आज तक? यस सर। यस सर। किसी भी टेबल के ऊपर ट्रंकेट चलाओगे डेटा परमानेंटली चला जाएगा, वो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। ओके। और दूसरा चीज है कि आपका स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। अभी आपके पास स्ट्रक्चर एज इट इज है तो आप देखो, स्ट्रक्चर एज इट इज है तो आप इसके अंदर डेटा डाल सकते हो वापस से। मैं वो वाला डेटा डाल देता हूँ। ओके, सेम डेटा डालता हूँ, जाके चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 14, आ गया आपका डेटा, जैसे एंटर किया वो यहाँ पे आ गया। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इज इट क्लियर ना? यस अभी सर। देखो, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और कमांड है, इट्स अ रीनेम। इट्स अ रीनेम कमांड। देखो रीनेम दो जगह पे होगा, एक आपका अल्टर में भी रीनेम है। अभी ये अल्टर में जो रीनेम है ना, इसका मीनिंग है कि अगर आपको कॉलम का नाम चेंज करवाना है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ अल्टर ये रीनेम यहाँ पे यूज करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ टेबल का नाम चेंज करवाना है तो आप यहाँ पे उसको रीनेम करवा सकते हो टेबल का। सपोज अभी देखो हम लोगों के पास डेमो 14 है और इसका आपको नाम चेंज करवाना है। क्या नाम करोगे? डेमो 14 टेबल आपके पास प्रेजेंट है और इसका नाम मुझे चेंज करवाना है। क्या करना पड़ेगा? देखो, रीनेम, डायरेक्टली आपका ओल्ड नेम क्या है टेबल का, वो वाला, तो न्यू नेम। सपोज मुझे इसको बनाना है डेमो 15। रीनेम हो गया टेबल। अभी चेक करते हैं, देखो ये वाला क्वेरी चलाएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स गेट रीनेम टू द डेमो 15। देखो अभी इसको डेमो 15 कर देता मैं, आ गया, नाम चेंज हो गया टेबल का। डेमो 14 से हम लोगों ने उसको क्या बनाया? डेमो 15। क्लियर? सिंपल सा कमांड है, रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम।
ओके, अभी दूसरा वाला रीनेम कि सर मुझे ना ये जो डीओबी है ना, इसका नाम मुझे चेंज करना है, ये डीओबी मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे इसका डेट ऑफ बर्थ पूरा बनाना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, अंदर टेबल नेम डेमो 15 है अभी आपका। ओके, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम आपका डीओपी है, न्यू नेम बनाना है डेट ऑफ जाके स्ट्रक्चर के अंदर भी चेक करते हैं, डिस्क्राइब डेमो हो गया चेंज आपका, डेट ऑफ बर्थ कॉलम का नाम चेंज हो गया। यस सर। देखो पहले क्या था हम लोगों का डीओबी था। ओके, अभी इसको चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पे अभी डेटा के अंदर भी चेंज है कि देखते हैं। अब सिलेक्ट वाला पे चला गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया यहाँ पे, यहाँ पे पूरा नहीं आया क्योंकि हम लोग का रिजर्वेशन आगे पीछे। ओके, आ गया। देखो मैं आपको 3 चीज बताया, टेबल को ट्रंकेट किया तो क्या होगा, हाउ टू ट्रंकेट द टेबल, टेबल नेम। Once you apply the truncate over the table, then what happens? The data removes from system permanently, but structure remains same. Okay. दूसरा चीज मैंने आपको सिखाया कि टेबल का नाम कैसे चेंज करें, हाउ टू रीनेम द टेबल। यहाँ पे बहुत इजी है, रीनेम कीवर्ड यूज करना है, रीनेम आपका ओल्ड नेम न्यू नेम करवाना है। ओके, और तीसरा चीज मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर आपको किसी टेबल का कॉलम का नाम चेंज करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ द अल्टर टेबल नेम रीनेम द कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू। यस सर। आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। देखो आंसर कैसे करें, once you apply the drop command over the table, then data as well as structure removed from the system of that table. Okay, but we have one feature, once you drop the table we need to flashback it, so we write the query flashback table name before drop. That's a feature, but drop the table is removed from the system permanently. And the next thing is that once you apply the truncate over the table, in that scenario your data removed permanently from the system and it's never moved back and your structure remains as it is. The reason is that why data is not getting back, because it's an auto commit and it's a DDL command. Clear? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर और एक बार किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कंसर्न इशू, और एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करें। देखो आज मॉर्निंग में हम लोगों ने 3 चीजें सीखी, ट्रंकेट का चीज, दूसरा चीज टेबल रीनेम कैसे करवाना है, टेबल का नाम कैसे चेंज करवाना है, तीसरा कॉलम नेम रीनेम करवाना है। देखो ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट कैसा किया जाएगा, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल, ये कमांड आपको यूज करवानी है, टेबल टेबल। Once you apply the truncate over the table, in that scenario, structure remain as it is. Okay, but data ये समझ में
आया ट्रंकेट का, अभी समझ में आया? यस सर। ओके, दूसरा है टेबल रीनेम कैसे करना, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ये चीज समझ में आया? इसका मीनिंग क्या है? टू चेंज द टेबल नेम। उसके बाद हमें कॉलम का नाम चेंज करना है, उसके लिए क्या क्वेरी लिखना है? अल्टर टेबल नेम रीनेम कॉलम, ओके, ओल्ड कॉलम नेम टू कॉलम। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू वांट चेंज द कॉलम, अभी समझ में आया सर? अभी समझ में आया? समझ में आया ये वाला चीज इतना सा? ये चीज समझ में आया सब? अगर मैंने यस सर। सर्टिफिकेट लगाया तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बट उसका डेटा जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है सिस्टम में, ओवर भी कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि टेबल रीनेम कैसे करना है, रीनेम टू न्यू नेम, इसका मीनिंग चेंज द मीनिंग। थर्ड वन इज कॉलम रीनेम करवाना है विद द हेल्प ऑफ द अल्टर कमांड, अल्टर टेबल रीनेम द ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ये क्या करेगा? चेंज द योर कॉलम नेम। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस सर। किसी को कुछ दिक्कत? नो कुछ सर। नहीं समझ में आया? कैन आई गो फॉर द वन टाइम? सर ये समझ में आया, बट एक दूसरा क्वेरी है मेरा। क्या? एक दूसरा क्वेरी है मेरा, जैसे हम कॉलम डिलीट कर सकते, वैसे रो भी डिलीट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन इन योर डीएमएल कमांड, दीस आर द डीएमएल कमांड, इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये हम लोगों का डीएमएल कमांड है। ओके। ओके, जैसे हम लोग पूरा डेटा जाता है तो वो परमानेंटली चला जाता है, बट डीएमएल कमांड है, इट्स नॉट अ ऑटो कमिटेड कि आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। अगर गलती से कुछ इंसर्ट हो गया तो उसको भी आप रोल बैक करेंगे तो एज इट इज टेबल बन जाएगा, गलती से कुछ अपडेट हो जाता है, वो देखना है हम लोगों को आगे। बट यहाँ तक समझ में आया? डीडीएल कमांड समझ में आया सर? यस सर। Okay, now we start the DML. Data manipulation. मैं आपको अभी एग्जाम्पल, सबको ये चीज याद है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सर वी नीड टू प्लान कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। अभी हम लोगों का एज पर द प्लान जो ऐड करना था वो करना था, ये चीज वहाँ पे थी, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, आपका घर रेडी। Once your house is ready, then what's the next process? Your dream house is completed, then what's your next process? बोलो। आई थिंक इंटीरियर का कुछ कर सकते पूरा सेट, पूरा क्लियर है। हम लोगों ने इंटीरियर भी इधर ये सेट करना था, उधर ये सेट करना था, यहाँ पे किचन में किस तरीके से होगा, कलर ये वॉल का ये होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, इधर ये पेड़ लगेगा, इधर पार्किंग में ये लाइट लगेगा। दैट्स ऑल स्ट्रक्चर इज क्लियर्ड नाउ। उसके बाद क्या करते हो सर? कंस्ट्रक्शन। अरे कंस्ट्रक्शन तो हो गया ना, सारा रेडी है, पूरा घर रेडी हो गया। जाके रहने का। हाँ, मतलब अभी आपका प्लान है कि वी आर डू द सम ऑक्शन पार्ट एंड वी नीड टू लिव इन दैट हाउस। यही प्लान होता है? क्या ऐसा होता है कि आपने आपका ड्रीम हाउस बनाया और उसको बेच दिया? होता है क्या? नो। नहीं होता है ना। ड्रीम हाउस इज अ ड्रीम हाउस, वो आपने आपके खुद के लिए बनाया है, जहां पे भी बनाया हो, छोटा हो मोटा हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, दैट डजंट मैटर, हर किसी का एक ड्रीम हाउस होता है।
इधर मेरा एक ऐसा घर होगा, वहां पे सारी फैसिलिटीज होगा, सारी चीजें अभी पूरा सेट है। वो बिल्डर ने क्या किया, पूरा बना के आपको ताला लगा के चाबी आपके पास दे दिया, मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। नाउ द टास्क इज कि आप वहां पे रहने जाने वाले हो। इज इट? यही यही फंडा होता है। आप फ्लैट लेते हो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, ऑल थिंग इज, देन आपका बिल्डर आपको चाबी दे देता है, दे प्रोवाइड द की। यस और नो? Yes. 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 अभी हम लोगों का स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि सर टेबल बनाया, टेबल के कॉलम बनाए, उसका डेटा टाइप ये होगा, उसका डेटा साइज ये होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। मतलब हम लोगों का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हम लोगों के एक्सपेक्टेड थिंग से बना हुआ है। सेम सिनेरियो आपके ड्रीम हाउस के बारे में, आपका घर आपके हिसाब से बराबर बना हुआ है। आपको जो भी चीज चाहिए था आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर के अंदर उसको लेके आए हो। द नेक्स्ट टास्क इज कि आप वहां पे रहने जाने वाले, बराबर। इट्स मीन वी आर इंसर्टेड। देखो, इट्स मीन वी आर इंसर्टिंग समथिंग। आप अंदर जा रहे हो, मतलब वी आर वहां पे रहने जा रहे हो, मतलब वी आर डूइंग आवर ओन स्पेस ओवर देयर, कि ये मेरा बेडरूम होगा, ये मेरे भाई का होगा, ये मेरे पेरेंट्स का होगा, ये मेरे दादा दादी का होगा, यहाँ पे पूजा घर होगा, ये किचन होगा, ये गार्डन होगा, ये पार्किंग एरिया होगा, ये टेरेस होगा, टेरेस पे ये चीज होगा, ये सारा सेट है। अभी उसके बाद आप लोगों ने आपका हक वहां पे लगाना शुरू कर दिया कि ये बेडरूम मेरी है। सो ओके, इट्स मीन वी आर इंसर्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सेम चीज आपको डेटा के साथ करवानी है। ओके, सेम चीज आपको डेटा के साथ करवानी है। आपका डेटा इंसर्ट होगा अभी। देखो, आपका ये जो चीज है, यहाँ पे मैंने आपको सैंपल करके भी बताया कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है, बट यहाँ पे ध्यान दो, आपका स्ट्रक्चर रेडी है सर, आपने टेबल बनवाया, उसके अंदर जो भी चेंजेस करने थे, डेटा टाइप चेंज करवाना था, साइज चेंज करवाना था, टेबल का नाम चेंज करवाना था, कॉलम का नाम चेंज करवाना था, एज एक्सपेक्टेड हम लोगों का स्ट्रक्चर रेडी है। अभी ये स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को डालने हैं रिकॉर्ड्स। सो इट्स ऑपरेशन ऑफ डीएमएल। डीएमएल में क्या होता है, देखो, सबसे पहला ऑपरेशन चलती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। द लास्ट वन इज द मर्ज। ओके, यहां तक समझ में आया सर? स्ट्रक्चर बना, अभी उसके अंदर डेटा जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेट करना मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा मैनिपुलेशन? कोई भी डेटा मैनिपुलेट करना मतलब क्या? मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। देखो, नया चीज डाल सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग चीज को चेंज करवा सकते हैं, या फिर जो चीज है वहां से रिमूव करनी है उसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब वी आर सर थोड़ा एक्सेल का थोड़ा सा साइज आप जूम कर दो ना। Okay, it's mean we are making the changes over the your data. Data insert करवाना है, डेटा अपडेट करवाना है, डेटा डिलीट करवाना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन। चलो वापस आपके एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी देखो, अभी सपोज आपके फैमिली मेंबर बोलो, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। इतना बड़ा घर बना है, मतलब सारे लोग रह सकते हैं ना। ओके, दूसरा कपल है आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा। ओके, अब अगर आप शादीशुदा हो तो माई एंड माई वाइफ। ओके, अगर आपके किड्स है, ओके, सन है, डॉटर है, वॉट एवर, एक ही है, सपोज सपोज वी कंसिडर एज वी हैव वन सन ओनली। ओके, अभी ये लोग इंसर्ट हो गए, बराबर। चलो और एक चीज डाल देता हूँ कि आपको एक ब्रदर भी है। ओके, अभी उसका शादी नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ, आप सारे लोग इधर रह रहे हैं। सिनेरियो को ध्यान से समझो, हम लोग डेटा के ऊपर जंप करने वाले हैं। ओके, देखो, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मम्मी पापा, माय वाइफ एंड मी एंड सन एंड माय ब्रदर।
इतने सारे लोग ये घर पे रहने वाले हैं, ओके, दे हैव देयर ओन बेडरूम्स एंड वॉट एवर थिंग। हम लोगों ने स्ट्रक्चर एज एक्सपेक्टेड हम लोगों को चाहिए था, इतना बड़ा फैमिली है तो हम लोग वहां पे रहने वाले थे। अभी आफ्टर सम डेज योर ग्रैंड मदर एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर पेरेंट डिसाइडेड कि आपके भाई का शादी करना है, तो इसका भी वाइफ आ जाएगा सर। अभी आपके टेबल में आपका ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपका और आपका भाई और आपके बेटे का एंट्री था। अभी आफ्टर सम 1-2 इयर्स आपका ब्रदर जो है उसका शादी हो गया, तो उसका वाइफ आ गया, मतलब उसका भी स्पेस यहाँ पे आएगा, वो भी वैल्यू एंटर होगा। यस और नो? यस सर। ओके, मतलब ये नया उसका वाइफ का रिकॉर्ड, ये न्यू रिकॉर्ड आया, मतलब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया आपका, ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। पहले आप लोगों के सारे लोगों के रिकॉर्ड थे, उसके बाद आपका ये वाला इंसर्शन हो गया नया। आफ्टर सम डेज उसको बेबी हो गया, आपके ब्रदर को एक बेबी हो गया, मतलब और एक आया, करेक्ट? और एक कितना कितना एंट्रीज हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंट्रीज हो गया। There is the 4 couple and 2 childs. Yes or no? 10 entries हो गया। यस सर। हाँ, अभी इंसर्शन ऑपरेशन खत्म। ओके, आफ्टर सम डेज व्हाट हैपन? ओके, मैं अभी आपको नया ऑपरेशन सिखाता हूँ यहाँ पे। अपडेट, अभी ये मैं हूँ, मेरा मन हो गया, ओके, मेरा मन हो गया, मेरे को ना और एक वाइफ चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, ओके, मैं यहाँ एक ही वाइफ से परेशान हूं, तो ये और एक नहीं चाहिए मुझे, बट फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करवाना है, मुझे एक नया वाइफ चाहिए, ओके, मतलब ये रिकॉर्ड में और एक एंट्री आ जाएगा सेकेंड वाइफ वाला। इसका ऑलरेडी एक वाइफ था, सपोज इसका नाम था XYZ और दूसरा वाला वाइफ आया, उसका नाम है PQR, मतलब डेटा अपडेट होगा मेरे लिए। यस और नो? यस सर। यस ओके, ये चीज हो गया। आफ्टर सम डेज व्हाट हैपन? अभी ये दोनों का तो दीज आर द योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो अभी उनका एज, आपका भी शादी है, आपका भी बच्चा है, मतलब दे आर मोर देन 80 इयर्स, 80 साल से बड़े हो गए। तो इसमें से क्या हो गया, आपके ग्रैंडफादर का डेथ हो गया। सपोज ग्रैंडफादर का डेथ हो गया, मतलब ये एंटिटी सर डिलीट हो जाएगा। यस और नो? ये एंटिटी डिलीट हो जाएगा। ये हम यस सर। अभी उनका सिर्फ तस्वीर रहेगा सर वहां पे, वो खुद वहां पे प्रेजेंट है। नहीं। अभी डेथ हुआ है, मतलब हम उसको रोल बैक भी नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते, वी आर नॉट अ गॉड। मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको बताना है कि हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट होगा। देखो, एग्जिस्टिंग चीज पे जो भी चीज अपडेट होगा, जिससे अपडेट ऑपरेशन, डिलीट मतलब ये यहाँ से रिमूव होता है, बट डिलीट में हम लोगों के पास ऑप्शन है, अगर हम किसी रो को, किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो उसको रोल बैक कर सकते हैं। बट अभी ये सिनेरियो में अगर ग्रैंडफादर का डेथ हो जाता है तो उनको रोल बैक कर सकते हैं क्या? कैन इट पॉसिबल? अगर किसी कोई आदमी मर जाता है तो उसको हम रोल बैक कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। बट आपको सिनेरियो समझ में आया कि आपका स्ट्रक्चर रेडी है, आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है, आपका डेटा अपडेट हो रहा है, आपका डेटा डिलीट हो रहा है। यस और नो? यस सर। चलो अभी हम लोग हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड अगेन फॉर द इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। ओके, मैं सारे टेबल, ये सारे दोनों टेबल को ड्रॉप टेबल डेमो 15 को मैं निकाल देता हूँ। मैं स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ, फ्रेश सिनेरियो लेंगे। ओके, एक टेबल बनाते हैं अभी स्ट्रक्चर के ऊपर। टेबल कैसे बनाएंगे बताओ? टेबल क्रिएट टेबल। क्रिएट क्रिएट टेबल। टेबल। सपोज मैंने बनाया टेबल, टेबल नेम। ओके, यहाँ पे मैंने डाला
साइज ऑफ प्रोटीन। और दूसरा में लिख दिया इट्स अ डेटा टाइप इज varchar 2 टेबल है ना, मतलब वी हैव अ स्ट्रक्चर आपका भी है। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये रेडी है। अभी इसके अंदर हम लोगों को डेटा इंसर्ट करवाना है। देखो इंसर्शन के लिए कुछ 3 सिनेरियो ऐसे कि इस तरीके से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि मुझे डेमो 14 के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है। सो कमांड इज लाइक दैट insert in demo और उसके वैल्यूज सीरियल नंबर का वैल्यू इट्स अ नंबर, ये कोड में नहीं जाएगा, सपोज 1 और डेटा इंसर्ट 1 रो क्रिएटेड। मुझे दूसरा भी रो चाहिए, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मुझे तीसरा भी रो चाहिए, मैंने तीसरा भी रो डाला है। तो हम लोगों सपोज कमिट करवाना, मतलब किसी को इस एक्शन भी चाहिए यही रिकॉर्ड हम लोगों ने डाला है, यही रिकॉर्ड डाला था, यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया, आपके सिनेरियो में आ गए, डेटा इंसर्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर के अंदर। यस और नो? यस टेबल के अंदर अभी आपका डेटा है। अभी यहाँ पे कुछ सिनेरियोज क्या होते हैं, देखो आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, वहाँ पे कुछ चीजें ऑप्शनल होती है, कुछ चीजें आपकी मैंडेटरी। यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। अभी सब आपको क्या करना है, सिर्फ सीरियल नंबर डालना है, नेम नहीं डालना है। आपको सिर्फ सीरियल नंबर डालना है, नेम नहीं डालना है, ये स्ट्रक्चर। तो इसे क्या कहते हैं, स्किपिंग ऑफ कॉलम। स्किपिंग, हम लोग ये नेम वाला कॉलम को स्किप करते हैं। इंसर्ट इनटू कॉलम 14, यहाँ पे आपको जिस कॉलम का वैल्यू डालना है, सपोज मुझे डालना है सीरियल नंबर का वैल्यू, वैल्यूज यहाँ पे मैं डालता हूँ, चेक करते हैं डालना है। मैंने ये वाला वैल्यू नहीं डाला था, मैंने स्पेसिफाई कर दिया इस ये वाले वैल्यू वाले कॉलम का वैल्यू चाहिए, मुझे दूसरे कॉलम का वैल्यू नहीं चाहिए। क्वेश्चन एल्स अदर सिनेरियो होता है कि आपको सिस्टम में पूछना चाहिए कि मोस्ट नंबर या मुझे मोस्ट नंबर डालना है और नेम डालना है, गाइस कमेंट योरसेल्फ। ओके, देखो अभी हम लोगों को क्या करवाना है, नंबर डालना है। स्किपिंग ऑफ, ये हुआ स्किपिंग ऑफ कॉलम। अभी हम लोगों को क्या, सिस्टम ने हम लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा सीरियल नंबर का डेटा इंसर्ट कर, नेम का डेटा इंसर्ट कर। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इंसर्ट इनटू डेमो 14, ओके, वैल्यूज, यहाँ पे हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड आपका कॉलम का नेम क्या है, सीरियल नंबर, दूसरा है एंड कॉलम का नेम है नेम। इसने पूछा एंटर द वैल्यू फॉर सीरियल नंबर, सपोज मैंने डाला 6। उसने पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ नेम, पूछा, यहाँ पे डाला सपोज मैंने महेश 4। तो यहाँ पे वो लेगा सिंगल कोट के अंदर 6। रो इंसर्ट हो गया। अभी जाके चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो।
आ गया आपका 6 नंबर का भी रो। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इंसर्ट ऑपरेशन 3 तरीके से किया। सारे कॉलम के वैल्यू डालो या पर्टिकुलर कॉलम का डालना है, इट्स कॉल्ड एज skipping of the column। और थर्ड वन इज द if you require the dynamically, then आपको यहाँ पे यूज करना है substitutional operator is and। using substitutional operator and column name। तो उसने आपको रन टाइम पूछा कि सीरियल नंबर का वैल्यू डालो, और उसने आपको रन टाइम पूछा कि आप नंबर का वैल्यू नेम का वैल्यू डाल दो। ओके, अभी आपके पास सर ये पूरा टेबल बन गया। ओके, अभी नेक्स्ट सिनेरियो आपको ये भी पूछा जाएगा। कोई ने किसी ने बताया बॉस जिसका सीरियल नंबर 4 है ना, वहां पे नेम बनाना है सर मुझे सागर, बराबर। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपडेट। देखो डेटा अपडेट कैसे होता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है 4, बट यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करवाना है, जिसका सीरियल नंबर 4 है, जिसका सीरियल नंबर 4 है उसका नाम मुझे सागर करवाना है। जिसका सीरियल नंबर 4 है मुझे उसका नाम सागर करवाना है। देखो अपडेट डेमो 14। ओके, अपडेट डेमो 14 सेट नेम इज इक्वल टू सागर where serial number is equal to 4। अभी यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपने ये वेयर कंडीशन हटा दिया तो सारे के सारे नेम क्या सेट हो जाएंगे, सारे के सारे नेम क्या सेट हो जाएंगे, सागर। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अपडेट डेमो 14 से नेम इज इक्वल टू सागर वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 4। अभी ये सेम चीज आप एक लिख रहे, सेम चीज जो क्वेरी मैंने आपको दिया था, सेम चीज आपको लिखना इंग्लिश में। I want to set the name as a Sagar, where the serial number is 4। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा, अपडेट क्या अपडेट करवाना है, ये टेबल अपडेट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या सेट करवाना है, सेट मुझे क्या करवाना है, नेम सागर करवाना है, बट किसका करवाना है, डेमो 14, सॉरी सीरियल नंबर 4 का। समझ में आया? चलो कैसे से अभी आप मुझे बताओ, मुझे ना सीरियल नंबर का नाम जो है ना, वो आप में से किसी का एक नहीं नाम बताओ। चलो मोनिका बनाना है, किसी एक का नाम जो जिसका सीरियल नंबर 5 है उसका नाम मुझे मोनिका बनाना है। क्या करोगे? अपडेट डेमो 14, अपडेट डेमो 14 डेमो 14 सेट नेम इज इक्वल टू सेट नेम मोनिका मोनिका, where serial number is 5। सीरियल नंबर इज इक्वल टू 5। सच में सेट हुआ या नहीं हुआ? हुआ? यस सर। ओके, यस सर। अभी मुझे क्या करवाना, आप अभी मुझे बताओगे कि जिसका सीरियल नंबर, जिसका नाम महेश है, ओके, जिसका नाम महेश है उसका मुझे सीरियल नंबर 7 सेट करवाना है। जिसका सीरियल नंबर मुझे 7 सेट करवाना है, बताओ अभी। अपडेट डेमो 14 अपडेट डेमो 14 सेट serial number is equal to 7 7 where serial number is नेम इज नाम इक्वल महेश है serial उसका number। सीरियल नंबर 7 करवाना है। हाँ सॉरी नेम इज इक्वल टू नेम। देखो यहाँ पे आप ऐसा डालोगे तो ये लेगा नहीं, बिकॉज नहीं। आपका डेटा केस सेंसिटिव होता है। जैसे ही डेटा वैसे ही आपको मिलेगा। डेटा केस सेंसिटिव होता है महेश,
आपने जैसा डेटा है इस तरीके से आपके पास डेटा है वही डेटा डालवाना है. ओके. Yes, sir. 2 rows get updated. Why 2 rows get updated? What's the reason why 2 rows get updated? कि 2 जगह पे महेश नाम है. हाँ, 2 जगह पे ही सीरियल नंबर 1 के लिए भी था. जाके चेक करते हैं सच में चेंज हुआ. ये चीज समझ में आया? हाउ वी अपडेट द डेटा. Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, कैन वी डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल? हम रो डिलीट कर सकते हैं, बॉस कर सकते हैं. इसको मैं कमिट कर देता हूँ लोगों को आगे देखने. ओके. हाउ वी डिलीट द डेटा. देखो, डिलीट करवाने के लिए एक सिंपल सा क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. अगर आपको कुछ कंडीशन के ऊपर डिलीट करवाना है तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो. अभी मुझे क्या करवाना है, जिसका सीरियल नंबर 7 है वही डेटा मुझे डिलीट करवाना है. जिसका सीरियल नंबर 7 है वही डेटा मुझे डिलीट करवाना है. डिलीट फ्रॉम डेमो 14 where सीरियल नंबर इज इक्वल टू 7. तो रो डिलीट हो जाएगा इसमें डेफिनेटली, Yes, sir. बिकॉज वी हैव 7 हियर एज वेल एज हियर. ओके. जाके चेक करते हैं कि डेटा सच में डिलीट हुआ या नहीं हुआ. अभी ये मेरे से गलती से डिलीट हुआ. देखो, अभी तक मैंने डिलीट को कमिट नहीं किया है, बट ये गलती से मेरे से क्या हुआ, डिलीट हुआ. मुझे ये डेटा वापस चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रोल बैक ऑपरेशन करोगे और जाके चेक करो आपका डेटा वापस आएगा. समझ में आया? Yes, sir. मीन्स अगर कमिट करते हैं तो नहीं आता कमिट कभी. करोगे तो नहीं आएगा. अगर कमिट करना मतलब व्हाट एवर चेंजेस यू आर डन, कमिट किया तो वो क्या हो जाते हैं, सेव हो जाता है. और वंस इट गेट सेव वो वापस नहीं आएगा. समझ में आया? चलो अभी यहाँ पे आ जाओ. ओके. देखो सर, हम लोगों ने ड्रॉप में चीज देखा कि स्ट्रक्चर एज वेल एज डेटा परमानेंट. सर, am I audible to you? यस. वो एक्सेल का थोड़ा साइज बढ़ाओ ना. फाइन. या थैंक यू. देखो, ड्रॉप में हम लोगों ने एक चीज देखा कि डेटा एज वेल एज स्ट्रक्चर्स परमानेंटली रिमूव हो जाता है सिस्टम से. अभी वो जो हम लोगों के पास फीचर है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो. ड्रॉप अगर हमने टेबल के ऊपर चलाया तो उसमें क्या होता है सर, अगर मैंने किसी टेबल के ऊपर ड्रॉप चलाया तो क्या होता है, परमानेंट डेटा डिलीट डेटा एज वेल एज टेबल स्ट्रक्चर. हाँ, टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो और आपका डेटा परमानेंटली रिमूव हो जाता है. दूसरा सेट, Yes. सर अगर मैंने किसी टेबल के ऊपर ट्रंकेट चलवाया तो क्या होता है, Data delete होता है permanently. बट Structure. स्ट्रक्चर रिमेन्स. Structure remains same. ओके. अभी थर्ड सिंगल, थर्ड इज डिलीट. ओके, थर्ड इज डिलीट. मैं आपको शुरू से बताता हूँ बिकॉज दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप जब भी काम करते हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, नहीं तो डेटा के पंगे हो जाएंगे. चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ड्रॉप. ड्रॉप इज द डीडीएल कमांड, सबसे पहला चीज. ओके, एंड इट्स अ Auto. ओके. दूसरा, once you apply the drop over the table, data as well as structure removed from system. Okay. दूसरा, truncate. It's also a EDL command and it's a auto committed. Okay.
यहाँ पे क्या होता है सर, डेटा रिमूव permanently but structure remain same. ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अभी थर्ड है आपके पास delete. Delete is a YAML command and it's a not a auto-completed. ओके, यहाँ पे क्या होता है, डेटा डिलीटेड बट नॉट परमानेंटली, डेटा डिलीटेड बट नॉट परमानेंटली गेट रोल बैक. गेट रोल बैक, ये चीज समझ में आया? यस आप सर। देखो, यहाँ पे आप टेबल का सारा डेटा को डिलीट कर सकते हैं या फिर एक कंडीशन के ऊपर. सपोज आपने यहाँ पे जो क्वेरी, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन के ऊपर डेटा डिलीट करवाया था, डिलीट फ्रॉम द दिस टेबल वेयर कंडीशन इज दिस. अगर आपको सारा टेबल डिलीट करवाना है, डिलीट फ्रॉम डेमो, सिंपल सा 6 रो के डिलीट टेबल, सारे के सारे रो डिलीट. जाके चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कुछ मिला आपको? इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बैक करूँगा, वापस आना चाहिए, वापस आके कौन सा it's a DML command and it's not auto committed, data deleted but not permanently, it's get rolled back if you want to delete the whole data or on a condition as well as delete the data. But if you commit, अगर आपने उसको delete कर दिया, commit नहीं किया तो उसको roll back कर सकते हो, but commit कर दिया तो वापस नहीं आएगा. Their changes get saved. बट यहाँ पे क्या होता है कि ट्रंकेट लगाया, इट्स ऑटो कमिटेड. ओके, मतलब वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है और डेटा परमानेंटली रिमूव जाता है, बट स्ट्रक्चर रहता है. यहाँ पे आओ, ये भी डीडीएल कमांड है, इट्स ऑटो कमिटेड. वंस यू ड्रॉप द टेबल देन योर डेटा एज वेल एज स्ट्रक्चर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम. ओके, बट यहाँ पे आपके पास एक फीचर है, आप ये वापस लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैशबैग. समझ में आया? समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कंसर्न है, बोल दो. यस और नो? सर मुझे कमिट एंड सेलेक्ट फ्रॉम का उतना समझ में नहीं आया. सिलेक्ट फ्रॉम किधर लगाया मैंने? मतलब ये वाला ना? हाँ. आप ये वाला बात कर रहे हो. देखो, सिलेक्ट, अभी इसके बाद का एक कमांड है, इट्स अ DRL, जो हम लोगों के कमांड्स थे ना SQL के अंदर, DQL और DRL. सिलेक्ट करना मतलब आपके टेबल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है वो हम लोगों को देखनी है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट क्लॉज यूज करते हैं. किसी पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए या सारा डेटा चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे. बिकॉज आपका 80% जो काम है ना वो चलता है आपका सिलेक्ट के ऊपर. SQL के अंदर 80% काम है सिलेक्ट के ऊपर है. इसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्लॉज देखते हैं, बहुत सारे कंडीशन देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, वो चीज है आगे. बट अभी रोल बैक का मतलब क्या है कि आपने ये वाला क्वेरी चलाया, ये वाला, इसका मीनिंग क्या है बताओ? डिलीट हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, मतलब वो टेबल से डेटा डिलीट हो गया. वो हम लोगों ने चेक भी किया कि अभी ये टेबल में कुछ प्रेजेंट है या नहीं है कुछ प्रेजेंट, नो रो सिलेक्टेड, मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिलीट करवाया. बट जैसे ही हम लोगों ने उसको रोल बैक करवाया, मतलब अंडू ऑपरेशन किया, मतलब जो चेंजेस किए थे उसको हम लोगों ने रिवर्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ द रोल बैक. और जैसे ही रोल बैक हो गया तो आपका डेटा वापस आपके पास आ गया. हाँ सर. That's a rollback and select. Select means whatever data in table वो हम लोग दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग select
Got it? Is it clear Okay. for all? Yes, sir. Yes, sir. तर बोलो. हा रो फक्त टाकलाय ना SQL समोर डेमो Your 14 हा voice is टेबल not रोल clear बॅक for me. करायचा आहे किंवा दुसरं मैडम आपका आवाज जो है ना वो ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या क्वेश्चन कर रही है. वापस से बोलो. फक्त रोलबॅक टाकलाय ना. हाँ. म्हणजे दुसरा टेबल सपोज आपल्याला घ्यायचा असेल, डेमो 14 नको असेल आणि दुसरा रोल बॅक करायचा असेल तर तिथे क्वेरी कशी आहे? सपोज देखो, अभी हम लोग एक सैंपल डेटा को उठा के उसके ऊपर इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन सीख रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक सिस्टम के अंदर जो डेटा सेट है उसको यूज करना शुरू करेंगे. ओके, आप टेबल कौन सा भी लो, डिलीट फ्रॉम द एनी टेबल, और आपने उसको डिलीट करवाया, चेक करवाया, उसमें कुछ नहीं है, बट आपको वो डिलीट नहीं होना चाहिए था, वो डेटा आपको वापस चाहिए, तो आप उसके ऊपर रोल बैक लगा सकते हो. इट्स नॉट अ लिमिटेशन कि आप वो पर्टिकुलर टेबल को ही करोगे, नहीं, आप कौन से भी टेबल के लिए कर सकते हो. ओके, क्लियर. सर म्हणजे मला काय विचारायचं होतं, आता याच्या 14 ह्या टेबलच्या आहे हाँ ये रोज. हाँ बोलो. आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज जो ठीक से नहीं खूप आ रही है. अशा हे केलं. हाँ, सो वी हैव अ डेटा इनटू हॅलो दिस डेमो 14. यहाँ तक समझ में आया आपको? आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक ठीक से, तो थोड़ा कनेक्टिविटी चेक कर लो ना. सर. सर हा माझा प्रश्न असा होता की म्हणजे डेमो 14च्या ऐवजी दुसरा कुठला टेबल आपल्याला घ्यायचा असेल. आता इथे डेमो 14च्या लगेच रोल बॅक केला ना, वरचा आपण डिलीट केलेला तर रोल बॅक केला आला. जर आपण आणि थोड्या क्वेरीज केल्या दुसऱ्या सिलेक्ट वगैरे किंवा क्रिएट आणि त्याच्यानंतर जर आपल्याला हाच टेबल घ्यायचा असेल तरी रोल बॅक तोच होईल का? अभी समझ में आया कि आपका कंसर्न क्या है. 1 मिनट. हाँ. आपके पास डीएमएल ऑपरेशन क्या क्या है बताओ. डीएमएल ऑपरेशन बताओ. आप इंसर्ट कर सकते हो. डीएमएल मतलब हाँ, आप इंसर्ट, कर सकते हो, अपडेट, डिलीट कर एंड सकते हो, मर्ज. और एक मर्ज बचा है, वो हम लोग ETL के कॉन्सेप्ट. देखो मर्ज मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसर्ट एंड अपडेट. जो ETL ऑपरेशन कॉन्सेप्ट जब आपको नहीं समझ आए तो हम लोग वो बाद में लेंगे, पहले ये तीन चीजें समझ लो. इंसर्ट मतलब डेटा इंसर्टेड इनटू द टेबल. अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग डेटा जो आपके टेबल में उसके ऊपर आपको कुछ अपडेशन करवाना है, मतलब अपडेट करवाना है. आपके टेबल में जो डेटा है उसको आपको डिलीट करवाना है तो आप डिलीट यूज करोगे, यस और नो. यस. अभी मुझे एक चीज बताओ, आपका डीएमएल ये ऑटो कमेंटेड ऑपरेशन है या आपको मैन्युअली जाके करना पड़ेगा? मैन्युअली जाते मतलब इट्स नॉट ऑटो कमिटेड. ओके, हाँ, अभी आपके क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अभी आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले इंसर्ट करवाया, इंसर्ट इनटू डेमो 14. ओके, उसके बाद मैंने दूसरा क्वेरी चलाया, अपडेट फॉर EMP टेबल. ओके, अपडेट EMP सेट व्हाटएवर ऑपरेशन आपने वहां पे करवाया. ओके फाइन. उसके बाद आपने क्या किया, वापस से डिलीट करवाया, डिलीट फ्रॉम डेमो 14. यही आपका कंसर्न है. यहाँ पे आपका टेबल अलग है, यहाँ पे आपका टेबल अलग है, और आप एक ही स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रही है. मतलब यहाँ पे शुरू से लेकर बहुत सारे कमांड हो गए आपके, बराबर. यही कंसर्न है, यस और नो. उसके बाद मैंने वापस इंसर्ट इनटू करवाया
EMP के अंदर मैंने डिलीट करवाया, डिलीट फ्रॉम EMP करवाया, उसके बाद वापस मैंने डिलीट फ्रॉम डेमो 14 भी करवाया। ओके, उसके बाद मैंने क्या करवाया ना, यहाँ पे रोल बैक चल रहा है, यही आपका डाउट है? यस सर। हाँ, तो आपका कहना है कि ये मेरा यहाँ से भी डेटा नहीं, तो आपने यहाँ पे रोल बैक करा है। देखो, आपने यहाँ पे रोल बैक करवाया, मतलब ये सारे आपके DML ऑपरेशन है, सारे के सारे। यस और नो? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, डिलीट, डिलीट, Yes. ऑल आर योर DML ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे रोल बैक हो जाएंगे। आपका ये इंसर्शन भी रोल बैक हो जाएगा, ये आपका अपडेशन भी रोल बैक हो जाएगा, आपका डिलीट भी रोल बैक होगा। डायरेक्टली आपने रोल बैक किया। देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कुछ डेटा इंसर्ट करवाया, मतलब आपने कुछ डेटा इंसर्ट करवाया, मतलब जैसे ही आप डेटा इंसर्ट करते हो तो आप उसको कमिट करो। कमिट करने के बाद वो रोल बैक नहीं होगा। ओके, अगर आपने ये वाला क्वेरी चलाया और उसके बाद आपने यहाँ पे कमिट करवाया ना, तो ये आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कमिट करवाया, ये भी आपका सेव हो गया। ओके, उसके बाद आपने कमिट ही नहीं किया तो डायरेक्टली रोल बैक किया, मतलब यहां तक आपके सारे चेंजेस रोल बैक हो जाएंगे। ये दो चीजें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वी हैव दिस कमिट ऑपरेशंस। Yes. अभी समझ में आया? योर डाउट इज क्लियर नाउ? Yes. Yes. ओके, किसी को कुछ डाउट है अभी भी? So, sir, the rollback function will apply for EMP as well for this condition. Yes. देखो, one thing is that suppose you are inserted something, then commit it. Once you commit, then it's never get roll back. But for this EMP, this also different table, this also different table. You deleted something from this table or you inserted into this table. It means both thing doing the DML operation. One is the delete, second one is the insert. Directly you roll back it, then the changes get undo. Means वो सारे changes remove हो जाएगा. Okay. सर फ्लैशबैक से कमिटेड वाला भी वापस आ जाएगा ना? बट नहीं, flashback is only for the drop. ओके ओके Flashback only for the drop. It's not for the DML operation. यहाँ पे आपके पास रोल बैक है। अगर आपने कमिट नहीं किया है तो उसको रोल बैक कर सकते हो, बट अगर वंस यू कमिटेड इट, उसको नहीं वापस लेके आ सकते। इसीलिए ये बहुत सेंसिबल चीज होती है डेटा के लिए कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्शन थिंग, आपको प्रोडक्शन में कुछ सपोज आपके पास जीरा में टिकट आया हुआ है, आपको एक टास्क असाइन किया हुआ है और आपको बोला गया है कि ये डेटा में कुछ इशू है, यहाँ पे इशू आ रहा है, तो आप विदाउट अप्रूवल डेटा को टच नहीं करते। वी नीड अप्रूवल फ्रॉम योर लाइन मैनेजर्स, योर प्रोडक्ट ओनर और समवेयर ऑथोरिटी पर्सन इज देयर। तो उनसे हम लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है कि यहाँ पे इशू है, ये गलत डेटा है, ये डेटा हम लोगों को डिलीट करवाना पड़ेगा। तो डिलीट करवाना है मतलब आपने उसको डिलीट किया, कमिट किया, मतलब वो डेटा 100% वो जाने वाला है, वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए वी नीड अप्रूवल फॉर। ये सारा प्रोसेस मुझे आपको सिखाना है। धीरे धीरे हम लोग वो जगह पे जाएंगे कि आप भी मुझे लगने चाहिए कि वी हैव द 4 ईयर एक्सपीरियंस, वी हैव द 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें ये पहले अंडरस्टैंड करनी है कि देखो, हम लोगों के पास यूएटी इंस्टेंस होता है, हम लोगों के पास डेवलपमेंट इंस्टेंस होता है, वी हैव द प्रोडक्शन, वी हैव द प्री प्रोड, ये सारी चीजें होती है, ये हम लोगों को देखना है। डायरेक्टली अगर आपका प्रोडक्शन के ऊपर आप चेंज कर दोगे, ये तो चीज नहीं होगा ना, डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर चेंज करवाना।
कर सकते हो डायरेक्टली प्रोडक्शन के। आपका एप्लीकेशन आपका एंड यूजर यूज कर रहा है और आपने कुछ डेटा प्रोडक्शन से डिलीट करवाया और उसको कमिट कर दिया, तो वो एंड यूजर को वो डेटा मिलेगा क्या? मिलेगा? No. नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो वी नीड मोर अप्रूवल्स फ्रॉम योर लाइन मैनेजर्स वॉट एवर अथॉरिटी पर्सन्स आर देयर। तो हम लोगों को वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है कि दिस थिंग इज रॉन्ग, सो वी नीड टू डिलीट इट। आपको सिंगल सेल का डेटा भी डिलीट करवाना है ना, तभी भी आपको अप्रूवल लगेगा उसमें। समझ में आया? Yes. अभी किसी को कुछ डाउट है? What? Anyone having any concern, any doubt? Anyone? हॅलो सर. हाँ बोलो. आता जे तुम्ही क्युरी जे शिकवताय सर, ते ऍक्च्युली नंतर डिटेल्स मध्ये सांगा ना थोडंसं. ज्या क्युरी आता जे शिकवताय तुम्ही सर, क्युरी आपण जे टाईप करतो ना, समजा क्रिएट टेबल नंतर इन्सर्ट किंवा काय ते, तर ते नंतर डिटेल्स मध्ये सांगा ना कसं क्रिएट करायचं वगैरे, कसं लिहायचं तो आपण. देखो, अभी एक सिंपल सा फंडा होता है कि हम लोगों को टेबल हमेशा क्रिएट करने पड़ेंगे, तो वो एट द एंड तक ये चीज चलती रहेंगी। बेसिक टेबल क्रिएट करना, अल्टर करना, उसको रीनेम करना, ये स्टार्ट टू एंड तक चलता ही रहता है। कौन सा भी नया कॉन्सेप्ट आया तो उसके लिए हम लोगों को डेटा सेट बनाना ही पड़ेगा, बराबर। तो वहां पे हम लोगों को टेबल तो बनना ही है। वैसे भी आपको ये रिकॉर्डेड सेशन वैसे ही मिलने वाले हैं, नो वरी अबाउट दैट। आपको नोट्स में इतना अच्छा लिख के देंगे कि आपको वापस से बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अभी आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप एक काम करोगे, जितने भी क्वेरीज हुए, देखो टेबल क्रिएट करना है, हर एक बंदा 10 टेबल क्रिएट करेगा विद द डिफरेंट नेम, विद द डिफरेंट कॉलम नेम, हर एक बंदा। उसके बाद जो कॉलम बने हैं उसके नाम चेंज करके, देखो करना क्या है आपके लिए, असाइनमेंट क्या है वो मैं आपको बोलता हूं। मैक्सिमम वी नीड टू क्रिएट द 10 टेबल, 1 पर्सन। 10 बार आप टेबल क्रिएशन का क्वेरी लिखोगे तो आपको दिक्कत आएगा? 10 बार क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, नहीं आएगा। दूसरा चीज, उसमें जितने भी हम लोगों ने अल्टर के ऑपरेशन देखे, कई टेबल में आपको कॉलम नेम चेंज करवाना है, कहीं पे आपको डेटा टाइप चेंज करवाना है, कहीं पे आपको साइज चेंज करवाना है। दिस 10 टेबल्स। तो आप क्या करोगे, आप टेबल क्रिएट करने के बाद आपका क्वेरी जो है जब भी सक्सेसफुल होगा, वो सक्सेस क्वेरी का स्क्रीनशॉट और वो स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट एक वर्ड फाइल पे लोगे और वो मुझे सेंड करवाना है। ये आपको करना है फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक, जो कमिंग फ्राइडे आएगा। अभी देखो आपके पास अप्रोक्सीमेटली यू हैव द 6 days इन योर 6-7 days, तो उसमें आपको ये काम करवाना है। अल्टर के सारे ऑपरेशन चेक करवाने, 10 टेबल क्रिएट करो, अल्टर के सारे ऑपरेशन चेक करवाने हैं। कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सअप करो कि ये चल नहीं रहा। कल मुझे किसी ने बोला था कि सर क्रिएट का कमांड अननोन आ रहा है, तो वहां पे क्रिएट का स्पेलिंग ही गलत था। कौन था, किसने भेजा था मुझे? सॉरी सर, मैं भी। हाँ नहीं हो सकता है, देखो इनिशियली वी हैव द फेसिंग दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस, हो सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो 10 टेबल, अल्टर ऑपरेशन एंड देन वी गो इन द टेबल ऑपरेशन। हर एक टेबल में मिनिमम 5 मिनट लगेगा, सारे सभी फाइल आपको टेबल कॉलम करने हैं, एक कॉलम का, दूसरा 2 कॉलम का, तीसरा 3 कॉलम का, तो ऐसे मल्टीपल कॉलम लिखना और उसके स्क्रीनशॉट निकाल के एक्सेल वर्ड फाइल में डालना है और उसका क्वेरी स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इट्स फर्स्ट असाइनमेंट। उसके बाद हाँ इतना ही करना है, टेबल ऑपरेशन करने हैं और डीडीएल ऑपरेशन। मींस टास्क इज दैट वी नीड टू परफॉर्म द डीडीएल एंड टेबल ऑपरेशन, एंड आई नीड अ रिस्पांस फ्रॉम द ईच एंड एवरी पर्सन कि हाँ चलो मुझे भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं वो सारे चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या लैग
जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका जो एडिटर है उसके ऊपर बहुत सारे एरर मिलेंगे, डेटा इंसर्शन मिलेंगे, उसके बाद क्रिएशन स्ट्रक्चर क्रिएशन मिलेंगे, अल्टर में मिलेंगे, इनिट ड्रॉप सारी जगह पे मिलेंगे। ओके, तो ये चीज तो हो जाएगा। Yes. सर शेयर कैसे करना बोला आपने? वर्ड फाइल पे पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है और उसके बाद मुझे मेल करवाना है। ओके सर। मेरा मेल आईडी तो अभी सबके पास आया होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा इंस्टॉलेशन बाकी है। इंस्टॉलेशन किया था सर, वो आपको मैसेज किया था, आप बोले थे सी ड्राइव डिलीट करके सब फॉर्मेट है। नहीं सर। मेरा भी प्रॉब्लम आ रहा है सर इंस्टॉलेशन में। हेलो, मुझे भी प्रॉब्लम आ रहा है सर इंस्टॉलेशन में। सर TNS प्रोटोकॉल इशू।